So we will be discussing the topic applications of the Laplace transform to boundary value problem. So उससे पहले क्वेश्चन आता है कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हमने डिस्कस करनी है. फर्स्ट इज योर Laplace इक्वेशन. Then you have second heat equation. And third one is wave equation. So now dealing one by one, first comes as Laplace equation. अब Laplace equation हमारे पास होती है that is curly square u upon curly x square plus curly square u upon curly y square is equal to 0. Now the point in this is कि what uxy represents over here, where u, that is a function of two-dimensional variables. This is two-dimensional Laplace equation where uxy represents the steady state temperature. Steady state temperature, right? अब steady state का inference क्या होता है? That is very important because your choice of the equation will depend upon कि steady state temperature की बात करनी है या normal. Steady state means independent of the time. Independent of time. You can see here I have written where uxy represents, so it is the function of variable x and y, right? Usually two dimensional में हम बात करें, so uxy can be any two dimensional thing. It may be rectangle, it may be square, right? अब एक और चीज इसमें हम लिखेंगे, Laplace equation is a second order So second order PDE means partial differential equation, which is widely used in physics. Widely used in physics in the problems of electrical, magnetic, and gravitational potentials. ठीक है जी, so this was your first. Then we are going to talk about heat equation. So first of all, equation is your curly square u by curly x square is equal to 1 by k curly u by curly t, or equivalent to curly u by curly t is equal to k times of curly square u upon curly x square, where uxt, so here you can see the variables are x and t, where uxt stands for the temperature, for the temperature at any point x and time t. So the constant k is called diffusivity constant. ठीक है जी. अब देखिए पॉइंट क्या है यहाँ पर, हीट इक्वेशन बेसिकली क्या डिस्क्राइब कर रही है. सो यू सी, जब भी आपके पास हाइट का डिफरेंस होता है देन द वाटर फ्लोज, राइट? वाटर ऊपर से लेकर नीचे तक आता है. इसी तरह से जब भी आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस होगा, से सपोज दिस एंड,
से वी आर टॉकिंग ऑफ अ रॉड, और ये है एंड ए और ये है आपके पास एंड बी, राइट। और यहाँ पर हमारे पास here you have 0 degree which is normally not x is equal to 0 degree, और से यहाँ पर है x is equal to 15 degree. So definitely there is a temperature difference. आज जब भी किसी चीज़ का डिफरेंस हो, लाइफ में एक फंडा होता है कि हर चीज़ बैलेंस होने की कोशिश करती है, राइट। सो यहाँ से भी क्या होगा, द हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग एंड yes definitely from you will have in this direction, that means from higher temperature region to लोअर टेम्परेचर रीजन, ठीक है जी। अब हायर से लोअर टेम्परेचर आ रही है, इसका मतलब हर पॉइंट पे x या किसी और टाइम पर यू वांट टू फाइंड द टेम्परेचर से, ये तो चलो मिडिल पॉइंट है, या इस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हैं या इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, तो वो इक्वेशन क्या गवर्न होती है, दैट इज करली u बाय करली t इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ करली टू u बाय करली x स्क्वायर, राइट। ये हो गया हमारे पास अबाउट हीट इक्वेशन। देन सिमिलरली थर्ड कम्स एज so third is your wave equation। अब वेव इक्वेशन हमारे पास होती है, इट इज करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर करली स्क्वायर यू अपॉन करली टी स्क्वायर। वैसे जनरली यू की जगह y यूज होता है, रीजन बीइंग उसका क्या है हमारे पास, वेयर यू एक्स टी इट रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट of any point x at time t and one thing more important is यहाँ पर हमारे पास it is vertical displacement of any point x at time t। अब अगेन इफ यू सी द इंटरप्रिटेशन, छोटे होते देखिए आपके पास अगर कोई रबर होता है, ये पॉइंट अगेन दिस इज पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट इज बी, सो दो जाने लेके इसको खड़े हुए हैं, से स्ट्रेच करा हुआ है, इसको स्ट्रिंग इलास्टिक चीज लिया है तो इसको स्ट्रिंग से हम बोल रहे हैं, राइट। सो इसको आपने क्या किया, अब आपने ध्यान से देखा हो कि बीच में से इसको पकड़ के आई हैव स्ट्रेच्ड टू द दिस पॉइंट, इस तरह से। सो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये चीज, ठीक है, दिस इज वन एग्जांपल। किसी भी आप किसी भी पॉइंट तक लेके आ सकते हैं, बट जनरली जब हम घर पे इस तरह से पकड़ते हैं, वी स्ट्रेच्ड ऑन द मिडल, और इस तरह सा कर्व कुछ बन सकता है। सो यू कैन सी हियर इट इज अ नो डाउट अ पैराबोला। अब उसके बाद जब आप इसको रिलीज करोगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, इलास्टिक रबर है, तो क्या होगा, दिस विल एग्जिबिट वाइब्रेशंस, ठीक है, नीचे जाएगा ऊपर आएगा इस तरह से। देन अगेन एवरी पॉइंट विल शिफ्ट फ्रॉम, इस तरह से ऑसिलेट करेगा। उसके कारण क्या होगा, हमारे पास कुछ बाउंड्री कंडीशंस जनरेट होंगी। आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर बाउंड्री कंडीशंस आल्सो। सो जस्ट सी किस तरह की बाउंड्री कंडीशंस है। आई राइट ओवर हियर यू 0t is equal to 0, these are the general boundary condition। अब देखिए इसका मतलब क्या है, u0t, this means this is end x is equal to 0, ये है मान लीजिए हमारे पास end x is equal to l। यूजुअली ये दो पॉइंट्स हमेशा फिक्स्ड होते हैं, राइट। अगर फिक्स्ड है, टाइड है, और बेटर वर्ड अगर हम यूज करें, these ends x is equal to 0 and x is equal to l are टाइड। अगर टाइड है तो इसका मतलब क्या होगा, देयर इनिशियल, जैसे मैंने आगे बात करी थी, दिस आर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, सो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 0, राइट। सो u0t एट एनी टाइम t
the vertical displacement of the point x is equal to 0 is equal to 0. Then similarly you have second condition, u lt is equal to 0. इसका रीजन वही रहेगा, the initial displacement ओके वन थिंग, इनिशियल नहीं क्योंकि हमने टाइम जनरल लिया है, सो इधर यू विल चेंज टू द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 0. ठीक है, किसी भी टाइम पर इसना क्योंकि टाइड है ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता, सो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल विल ऑलवेज बी 0. सेम हियर, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 0. देन थर्ड आ जाएगा हमारे पास, द थर्ड कंडीशन. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट x, और क्योंकि हमने टाइम t इज इक्वल टू 0 लिया तो इसको आप जरूर बोलेंगे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज योर इनिशियल displacement. Initial means at time t is equal to 0. अब दिस इज रीजन, देखिए यहाँ पर वी आर स्टार्टिंग टाइम t इज इक्वल टू 0. हम यहाँ से कंसिडर करेंगे जब आप इसको ऊपर स्ट्रेच कर रहे हैं उसके बाद रिलीज कर रहे हो. तो जिस कर्व को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, यहाँ पर ये पैराबोला है बट इट कैन बी एनीथिंग. सो हियर आई हैव टेकन ux0 is equal to fx. Then the last condition is utx0 is equal to gx. Now this is initial. You can see अगर u vertical displacement है या फिर distance है, then with respect to derivative with respect to t क्या represent करेगा? This will represent velocity. So this is initial velocity. That means again at the time t is equal to 0. This I have referred to be gx, but generally again यहाँ पे note करने वाली बात है, but generally क्योंकि हम रेस्ट से रिलीज करते हैं इसको, released from rest, so this is 0. So initial velocity is 0. Now this is your base of all the first 4 topics which we are going to deal. अगर आपको ये इक्वेशन समझ आ जाती हैं तो आगे बाउंड्री कंडीशंस जो बनानी है that is based upon this, and you will be clear how to form the boundary conditions and hence which transformation to be utilized, Laplace, Fourier or Hankel transforms, right? Next देखिए, so now we are going to start with the topic applications of Laplace transforms to solve Laplace equation, heat equation and wave equation. ठीक है जी. अब देखिए उसमें first of all you have 4 very important results. So सबसे पहले हम उसको डील करने लगे हैं. You have if y is equal to yxt, where they have taken in terms of y, then first result is Laplace of curly y by curly t is equal to, this is equal to
एस वाई बार एक्स माइनस वाई एक्स जीरो, राइट। अब देखो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि वेरिएबल किस पॉइंट पे, आगे तो सिंपल था बट वी हैव रेड कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ टी इट इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर यू हैव डन माइनस एस टी एफ टी डी टी, ठीक है। या हम इसको बोल देते थे एफ एस। अब एफ एस क्यों बोल रहे थे, बिकॉज इंटीग्रेशन इज हेयर विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल टी, राइट। अब वेरिएबल टी के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन है, सो इसका मतलब टी तो इंटीग्रेट हो जाएगा, टी की वैल्यू सब्सिट्यूट हो जाएंगी और आंसर किस में बचेगा आपके पास, इन टर्म्स ऑफ एस ओनली। सो यहाँ पर यू सी हेयर नाउ वी आर टेकिंग नाउ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स वाई एक्स टी। सो जब आप इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे दिस मीन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी। ओके, एक थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर देती हूँ आपको। से यू हैव here Laplace of curly y by curly t, right? This will be here curly y by curly t dt. Now more important thing is कि यहाँ पर function किसका है, it is y as a function of xt. जब Laplace लग गया इसका मतलब again t की क्या हो जाएंगी, लिमिट्स पुट अप हो जाएंगी, ठीक है। सो t will be transformed to s. so जो न्यू फंक्शन आएगा that will be y bar x s. आई होप दिस इज क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। बाकी हमें देखो एक और रिजल्ट भी पता ही है, बिल्कुल उसके एनालॉगस आया ये चीज कि लैप्लेस ऑफ यू नो एफ डैश टी दैट इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, ठीक है ना। ये तो हो गया व्हेन इट वाज फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। सो सिमिलरली हियर यू हैव एक्सटेंडेड टू वेरिएबल एस वाई बार एक्स एस माइनस वाई एक्स जीरो। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वेरिएबल, लैप्लेस ऑफ curly square y curly t square it is equal to s square y bar xs minus s y x zero minus yt x zero। ये रिजल्ट्स बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए। सो अगेन यू कैन जनरलाइज, नहीं याद आ रहा आप इससे हमेशा जनरलाइज कर सकते हैं। लैप्लेस ऑफ एफ डबल डैश टी यू हैव एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। सो यहाँ पर भी ये आ गया ट्रांसफॉर्म फंक्शन वाई बार एक्सेस माइनस फंक्शन एट द पॉइंट जीरो एंड देन डेरिवेटिव एट द पॉइंट जीरो, सेकेंड रिजल्ट। देन यू हैव थर्ड थिंग लैप्लेस ऑफ curly y by curly x this is equal to dy bar upon dx। फोर्थ है हमारे पास so this is dx square, right। so ये चारों रिजल्ट्स बिल्कुल माइंड में होने चाहिए। अब देखिए नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। so the first question is from the book only, it is page number 393 of the book। And first of all I'm going for the first topic further, that is application to heat equation। so the question is a semi infinite solid
x greater than 0 initially at temperature temperature 0 at time t is equal to 0, a constant temperature u naught greater than 0 is applied and maintained at the phase x is equal to 0. Find the temperature at any time t. सो सॉल्यूशन, सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. इक्वेशन भी आप ही ने डिसाइड करनी होती है. नो डाउट हेयर आई हैव ऑलरेडी रिटर्न स्टार्टिंग है. सो हीट इक्वेशन, अब देखो पॉइंट इज अ सेमी इनफाइनाइट सॉलिड. पहली बात तो इसका मतलब इनफाइनाइट लेंथ की बात हो रही है, राइट. दिस इज द फर्स्ट थिंग. कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, एक्स ग्रेटर देन से शुरू कर रहे हैं. देन अब जब भी आपने कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बी यू हैव टू फॉर्म द बाउंड्री कंडीशंस, राइट. सो बाउंड्री कंडीशंस के लिए अब हम एक एक चीज ध्यान से पढ़ेंगे. इनिशियली एट टेम्परेचर 0. इनिशियली का मतलब क्या है कि एवरी पॉइंट at time t is equal to 0 is at temperature 0. जैसे मैंने पहले ही कहा था कि uxt क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट x एंड एट टाइम t. सो उसने यहाँ कहा है आपको इनिशियली मीन्स एट टाइम t is equal to 0 और एवरी पॉइंट राइट इज एट टेम्परेचर 0. फिर at time t is equal to 0, a constant temperature u naught greater than 0 is and maintained at the phase x is equal to 0. So जो हमारा phase x is equal to 0 है, उसने कहा है कि अप्लाई भी किया गया और उस पर मेंटेन भी किया गया. मतलब एट फुल टाइम, किसी भी टाइम पे वो कौन से टेम्परेचर पे है, दैट इज एट द टेम्परेचर u naught ओनली. देन दीज आर द टू कंडीशंस. ठीक है जी. उसके बाद देखो एक चीज विच इज क्लियर इन दिस केसेस कि टेम्परेचर हमारे पास हमेशा फाइनाइट ही रहेगा. ठीक है. सो दिस आई एम राइटिंग u इज फाइनाइट. अब जो हम डायग्राम बना सकते हैं वो ये है आपके पास. उसमें कहा है x ग्रेटर देन 0. ठीक है. दिस इज x इज इक्वल टू 0. कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है, राइट. द पॉइंट इज कि अगर इनफाइनाइट पॉइंट पे भी हम चले जाएं, ठीक है, दैट मीन्स अगर इसको मैं और प्रिसाइज लिखूं, दिस वन, सो आई कैन राइट ओवर हेयर कि uxt is finite as x tends to infinity. सो चाहे इंफिनिटी पे चले जाओ, टेम्परेचर तो हमारे पास फाइनाइट ही रहेगा. ठीक है जी. सो दीज आर द बाउंड्री कंडीशंस. आई होप इट इज क्लियर. देन नाउ वन बाय वन करके अब हम इन बाउंड्री कंडीशंस को यूज करेंगे. हीट इक्वेशन है, सो सबसे पहले इक्वेशन भी लिख लें. दैट वाज योर कर्ली स्क्वायर u, you can write it as हीट इक्वेशन इज, पहले ये लिख लेते हैं. हीट इक्वेशन इज curly u by curly t is equal to k times of curly square u upon curly x square. राइट. अब हमने इसको सॉल्व करना है. देखिए वी हैव टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ लैपलेस या फोरियर. अब पहले जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज विद द हेल्प ऑफ लैपलेस. तो लगाएंगे यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स.
we have सो करली यू बाय करली टी। जैसे हमने पीछे मैंने आपको कहा था कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम यूज करेंगे। दिस इज इक्विवेलेंट टू नाउ एस यू बार एक्स एस माइनस यू एक्स जीरो इज इक्वल टू k times of Laplace of this, it is equal to d2 u bar by dx square। सो फिर से अभी एक चीज रिपीट कर देती हूँ, यू एक्स टी का जब हम लैपलेस ले रहे हैं देन इट इज ट्रांसफॉर्म टू यू बार एक्स एस। ठीक है जी। अब ये आ गया हमारे पास। नाउ यू विल यूज द बाउंड्री कंडीशन। उसने क्या कहा है आपको, यू एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, एस यू बार इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डी टू यू बार बाय डी एक्स स्क्वायर। राइट। अब देखिए सो कंडीशंस आपके सामने रहनी चाहिए बिकॉज आगे भी हम यूज करेंगे इन सबको। Okay, now it is d2 u bar upon dx square is equal to s by k u bar। Now you can see जो इसमें हमारे पास important result ये arise हुआ है कि from partial differential equation we have arrived to ordinary differential equation of order 2। और इसको सॉल्व करने हमें आता है, क्या आ जाएगा इसका सोल्यूशन, पहले तो सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए, दिस इज डी स्क्वायर माइनस एस बाय के यू बार इज इक्वल टू जीरो। देखो ठीक है, जैसे कि हमारे ऑपरेटर होता है हमने उसमें क्या कर दिया है, यू हैव स्टैंडर्डली हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, d by dx is equal to d। so here d2x by dx square कितना आ चुका है, दिस इज d स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे d स्क्वायर माइनस एस की। सो डेफिनेटली रूट्स यू कैन फाइंड, ऑक्सिलरी इक्वेशन रफ में ये काम करोगे आप लोग। बट अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाय के। सो हमारे पास रूट्स क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एस बाय के। सो यू हैव हेयर वाई बार सॉरी यू बार, क्योंकि यू में चल रहे हैं हम सो यू ही उठाएंगे, यू बार एक्स एस इट इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर अंडर रूट ऑफ एस बाय के एक्स प्लस बी एक्स। सो ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन, बिकॉज राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं है सो इट विल हैव ओनली योर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, नो पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब देखिए नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि सॉल्यूशन आ गया है, इसमें हमने किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट्स a एंड b। अब जब आपने कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यू हैव टू पिक, सबसे पहले तीन कंडीशंस है जिसमें से वैसे हम ये वाली यूटिलाइज कर चुके हैं, राइट। इन दोनों में से आपने वो कंडीशन पहले लगानी है जो आपको कोई कांस्टेंट की वैल्यू जीरो दे दे। जैसे कि इसमें देखिए you can see if I write u xt tends to 0 as x tends to infinity, uxt tends to finite as x tends to infinity। this will imply अगर हम लैपलेस ले लें तो भी क्या आ जाएगा कि u बार xs is also finite as x tends to infinity। अब अगर u बार हमारे पास फाइनाइट है
तो देखो कौन सी टर्म, अगर इस टर्म को भी हम इंक्लूड कर लेंगे अपने सोल्यूशन में, ई रेज टू पावर प्लस वाली, so definitely at infinity this will give rise to u bar x is also infinite. इसका मतलब therefore a must be equal to 0. तो काफी क्वेश्चंस में हमारे पास यही फर्स्ट कंडीशन यूटिलाइज होती है. therefore you will have u bar xs is equal to b e raised to power minus s by k x. ये आ गया हमारे पास. अब सिर्फ लास्ट चीज है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नाउ कांस्टेंट b. सो उसके लिए फिर से कंडीशन यूज करेंगे. देखो कंडीशन जो गिवन है, आई एम गोइंग टू यूज दिस कंडीशन विच इज लेफ्ट नाउ. u 0t इज इक्वल टू u नॉट. इसका क्या लेंगे, बिकॉज हमारे पास रिलेट करना है तो इसका भी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कंसिडर करेंगे. सो राइट डाउन टेकिंग I'm writing over here, taking Laplace transform on both sides अब ये दोनों कंडीशंस तीनों हमने यूज कर लिया. सो वंस आई एम अरेजिंग इट, सो u bar Laplace of you have u 0t is equal to Laplace of u naught. और यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, u bar 0s. u naught is a constant, so Laplace of 1 हमें पता है, it is 1 by s. ये आ गया. now मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन 1 है. सो फ्रॉम 1 वी हैव u bar x 0 u 0s इज इक्वल टू, क्योंकि हमने दोनों को कंपेयर करना है. सो x इज इक्वल टू 0 कर दिया. इधर से कितना आ गया, b. ये है आपके पास 2. सो इक्वेटिंग we have b is equal to u naught by s. therefore u bar xs is equal to u naught by s right. तो ये आ गया हमारे पास, वी हैव गॉट द आंसर. बट फिर से देखिए क्वेश्चन हमें क्या है, यू हैव टू डिटरमिन द uxt. uxt मींस टेम्परेचर एट एनी पॉइंट. सो जैसे आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था इन योर फर्स्ट ईयर की, पहले लैप्लेस ले लिया फिर इनवर्स लैप्लेस ले लिया. अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यू विल राइट टेकिंग इनवर्स लैप्लेस ऑन बोथ साइड्स. we have what is constant that you can keep outside Laplace inverse of 1 by s e raised to power. So this will give you the final result therefore you have u naught error function of x upon under root of 2 kt. अगेन ये आपने किया हुआ है in your first year. This is error function of x upon 2 under root of kt. That is your answer.